Siddhi? Siddhi, have you tried solving problem? Okay, Nevidya? Sir, I was not in lecture, so I have to see the recorded lectures and then I'll try. Okay. Okay. So we'll take one example again. Okay. Considering please hold for a minute. Huh? Yes, so we'll take an example where L is equal to W, okay, such that W is string of A's and B's, where number of A is equal to number of B's. Now we don't know how exactly they will occur, correct? So what could be possible thing? A, B, B, A, B, B, A, B, B, then BA, BA, BBAA, B, AAB, and so on. Now, what do you think? What should be logic for this implementation? If at all we have to come up with, can somebody tell me, considering the examples that we saw earlier? What do you think? What should be the mechanism that we should apply? So if we follow the same logic, like if we find A, okay, then push something, and whenever we get first B, pop it. And if you get first B, okay, then next should be A. So what do you think it would be? Because if it is the case like this, first you are getting A, so whenever you are getting A, and if you get B, pop it. And if you are getting B, then enter into such state so that if you get A, it should be popped. Are you with me? Hello, are you with me? रोहित? Yes, sir. नैवेद्या समझ में आ गया मैंने क्या बोला? Yes, sir. What I am saying is, like when it starts with A, okay, you'll be pushing something, and when you get B, you are going to pop. But if you get B, then ultimately A. For A, it would be, this B would be push and this A would be pop. Correct. Now, how exactly we should write? So let us say that we'll start with all strings first, which are starting with A. Correct. So delta Q0 AR. Similarly, there would be delta Q0 BR. Correct. Am I right? So as I said, we'll push blue. So delta Q1. Now यहाँ पर अगर B आता है, then we are going to pop. अगर ये आता है, देखो अगर A आएगा तो B पुश कर दिया, लेकिन अगर B आता है तो यू आर गोइंग टू एंटर इनटू Q2. करेक्ट. अभी क्या करना पड़ेगा? अभी जब पॉप हो जाए, सो फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दिस स्ट्रिंग ए बी बी ए. इसके लिए हम ट्राई करते हैं. ए के लिए क्या हो गया? सो लेट मी टेक रफ पेज. सॉरी,
एक रब पेज लेते हैं. सो लाइक इफ माई स्ट्रिंग इज ए बी बी है, क्या होना चाहिए? ये आर है, करेक्ट. एक ए आता है तो ब्लू पुश करो, बी आता है तो इसको पॉप करो. अगर बी आता है तो क्या करना पड़ेगा? जी पुश करेंगे. अगर उसके बाद ये आएगा तो इसको पॉप करेंगे. सो यू हैव टू एंटर इन सम स्टेट सो दैट इट विल टेक केयर ऑफ कि पहले बी आया था कि ये आया था. आर यू विद मी? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? यस. लॉजिक अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछो प्लीज. हाँ, बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग देन इट क्रिएट्स ट्रबल फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. यस प्लीज. सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? यस सर, समझ रहा. Yes, sir. ओके. तो अगर ऐसा है, ए बी है तो पॉप करना है, लेकिन यहाँ पर बी आता है तो इट वुड बी व्हाट? सो यू आर गोइंग टू एंटर इनटू से Q3 GR. मैं Q3 लिख रहा हूँ, बाद में वी कैन थिंक ऑफ लाइक व्हाट एग्जैक्टली वुड बी हैपनिंग. So if I write this, then it would be Q3 GG. But if it is Q3 AG, then Q4 एप्सिलॉन. तो अभी ये दोनों स्टेट्स तो अलग अलग हो गए, क्योंकि देखो अगर ए आता है तो ब्लू पुश किया, करेक्ट. अगर बी आता है तो वी आर पॉपिंग इट सो दैट दिस विल बी रिजॉल्व. ये रिजॉल्व हो जाएगा ना ए बी वाला. अगर वो बी ए है तो Q0 BR है तो Q3 AG आ जाएगा, ये पॉप हो जाएगा, करेक्ट. सो लाइक एटलीस्ट बोथ ऑफ देम आर वर्किंग. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नो एक्सेप्टेंस पर्सपेक्टिव राइट नाउ. ओके. अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर ये ए है सॉरी, अगर ये ए है सो ए अगर होगा तो बी चला गया. नाउ इफ यू आर गेटिंग बी देन यू आर गोइंग टू पॉप इट. लेकिन ये पॉप होने के बाद फिर से आर आ जाएगा, करेक्ट. फिर से आर आ जाएगा. सो इन विच स्टेट वी वुड बी इन Q2, correct. So let me write like this. Okay, by the way, I'm trying to solve it. We'll write corrected version later. So now I am getting here B. I am seeing this situation. So why not enter into, sorry. क्योंकि क्या अगर ए बी आता है, करेक्ट, so that means we have to pop when we find A. अगर वो बी आता है तो ये जी जी करता रहेगा, करेक्ट, पुश करता रहेगा. लेकिन अगर ए आ गया तो फिर से Q4 में चला जाएगा. तो Q4 में जाने के बाद अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अभी देखो ये कैसे चल रहा है. तो दो आई एडेड मेनी स्टेट्स. ठीक है. अभी एक सिचुएशन लेते हैं, हम एक स्ट्रिंग लेते हैं BA AB. ठीक है. यहाँ पर ये आर है, ये पहला बी आया, वी आर इन Q0. Q0 BR क्या है? Q0 BR, Q0 BR क्या है? Q3 GR. Q3 GR, correct. So this is in Q3. Q3 AG. What we are doing? Q3 AG क्या हो रहा है? Popping G. पॉप हो रहा है ना. सो ये आ गया Q4 में. नो Q4 AR, तो ये चला गया यहाँ पर, फिर से B आ गया, करेक्ट. Q1 BR, Q1 BB, ये आ गया
Q2 में, करेक्ट। सो सिनेरियोस क्या क्या आएगा, अगर ये ऐसा स्ट्रिंग है तो इस तरीके से हो जाएगा, मतलब ये पॉप हो जाएगा और Q2 में रहेगा, सो Q2 एप्सिलॉन आर आ जाएगा, करेक्ट। इस केस में अगर ऐसा स्ट्रिंग है, अगर ये उल्टा है उस केस में क्या होगा, ये आर है, Q0 AR, करेक्ट, Q0 AR। उसके बाद Q1 BR हो गया, इसलिए B डाल दिया, सो Q1 BB ये आ गया Q2 में, Q2 BR ये आ गया G, Q3 GR आ गया ना, सो Q3 AG ये आ गया, Q4 एप्सिलॉन आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे एक सिनेरियो क्या आने वाला है, Q4 एप्सिलॉन आर, करेक्ट। सो देखो ये बात हो गई, ये BA हो गया, AB BA हो गया और BA AB हो गया, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करते हैं हम, ये 3 केसेस ठीक है। तो अभी ये लेते हैं हम BA AB, ये R है, सो Q0 BR, सर वो ही लिया था पहले। ओ ले लिया है क्या, सॉरी, सो आई शुड हैव टेकन BA सॉरी, BA लेना था, या सो Q0 BR, व्हाट इज Q0 BR, सर जी Q3G Q3G Q3 GR, Q3 AG, Q4 एप्सिलॉन, करेक्ट। सो Q4 BR, अभी हमने लिखा है क्या Q4 BR, तो इसका मतलब ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसका मतलब फिर से ये Q3 GR, करेक्ट, बराबर है, क्योंकि ये G डालना पड़ेगा ना इस B के लिए, Q4 आया ना, Q4 एप्सिलॉन पॉप कर लिया, तो Q4 यहाँ पर B आया, यहाँ पर R आया, तो यहाँ पर हमने Q3 GR कर लिया, तो ये फिर से G आ गया, Q3 AG, तो ये पॉप हो गया, तो ये फिर से इसमें आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये भी सॉल्व हो सकता है, कौन सा, BA। अब ये इन दोनों को लेते हैं हम, AA BB वाले के सॉल्यूशन को, ठीक है। ये वाला और ये वाला करना है हमें, सो लेट अस से AA BB है, Q0 AR, सो Q1 BR, Q1 AB, Q1 BB, Q1 BB, Q1 BB, तो क्या हो गया, ये Q2 आ गया, ये Q2। सो अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, Q1 BB आ गया ना, सो निकल गया, सो फिर से हमें Q2 है, सो नाउ Q2 BB, ये क्या आएगा, Q2 एप्सिलॉन, Q2 एप्सिलॉन R हमने ये लिख लिया है, करेक्ट। सो इसका मतलब ये भी हो सकता है, अगर हम लेते हैं BBA, इसके लिए देखो फिर हम थोड़ा बड़ा वाला स्ट्रिंग लेंगे, Q0 BR, Q3 GR, Q3 BG, Q3 GG, Q3 AG, Q4 एप्सिलॉन, Q4 AG। जैसे यहाँ पर हमने Q2 BB डाला था, वैसे हमें लिखना पड़ेगा Q4 AG, तो ये क्या करना पड़ेगा, पॉप। लेकिन अभी दिक्कतें हैं बहुत सारे, अभी हम ऐसा थोड़ा सा स्ट्रिंग लेते हैं, सपोज B A 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर ये स्ट्रिंग हमारा ऐसा है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं स्टैक निकल रहा हूँ, यहाँ पर Q0 है, Q0 AR, बोलो, Q0 Q1 AR, BR Q1BR ये Q1 आ गया, Q1 BB, ये Q2 पॉप, करेक्ट, Q2 BR,
Q2BR ना, अभी ये B की बात कर रहे हैं, Q2BR ये क्या आ जाएगा, G, करेक्ट। वो क्या हो गया स्टेट Q3, Q3AG, Q3AG हमने डाला है, सो ये पॉप हो गया, करेक्ट। ये Q3AG था ना, नहीं सॉरी ये था ऊपर, ये Q4 है, ये Q3AG ये हो गया Q4 एप्सिलॉन, ये निकल गया Q4AR, Q4AR ये हो गया फिर से Q1BR, Q1AB, Q1AB फिर Q1BB। से ये नहीं है यहाँ पर है, ऐसे ये आर है यहाँ पर, ऐसे मान के चलते हैं। सो ये दोनों हो गए। सो Q1BB, Q2 एप्सिलॉन, Q2BB, ये देखो ये भी फिर से Q2 एप्सिलॉन एंड देन Q2 एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब एक आप सोच के स्ट्रिंग दो मुझे, आप कैसे भी किसी भी तरीके से लो, सिर्फ नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बी सेम होनी चाहिए। थोड़ा ट्रिकी भी ले सकते हो, बड़ा मत लो, बट लेट अस ट्राई टू टेक इट वेरी ट्रिकी वन, करेक्ट। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच पाँच है, करेक्ट। थिंक ऑफ दिस नाउ, सॉरी हम फिर से लिखेंगे इसको, ये सॉल्यूशन को, ये यहाँ पर है। थोड़ा मैं बड़ा स्टैक लेता हूँ, जिससे क्या होगा कि हमें लिखने में बड़ा इन द सेंस वो हम वहां पर लिखते जाएंगे, करंट जो भी होगा वो। अभी Q0 सॉरी Q0AR, Q0AR PR ये भी आ गया, हम Q1 में है। Q1BB ये पॉप हो गया, ये Q2 आ गया, करेक्ट, ये हो गया। Q2AR, Q2AR है हमारे पास, Q2AR No। लिखा है हमने नहीं, तो इसका मतलब क्या है, आपको फिर से एक ऐड करना पड़ेगा। तो हम कितनी बार ये ऐड करते जाएंगे, सो कैन वी सिंप्लीफाई दिस, कैन समबडी गिव मी सॉल्यूशन, बिकॉज क्या हो रहा है, ये हम कुछ कुछ ऐड करते ही जा रहे हैं, करेक्ट। सो लाइक वी ऑलरेडी एडेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमें थोड़े कम करने हैं, बिकॉज हियर आई एम कंसिडरिंग डिफरेंट सेट ऑफ स्टेट्स। सो इंस्टेड ऑफ इट लेट मी ट्राई दिस वन, ओके। ये आइडिया समझ में आ गया ना, क्या किया था हमने, हम एक ऐड करते जा रहे हैं। सो इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर अस, हाउ मेनी व्हेन एग्जैक्टली वी विल एंड, बिकॉज वी डोंट नो हाउ द स्ट्रिंग ऑकर्स, अकॉर्डिंगली एक्शन वुड बी टेकन, correct. So can we come up with something else, okay? So let me try to write it. So I am taking the same language L, it accepts a string W, okay, it accepts a string W where W is string of A's and B's with number of A equal to number of B, correct. So let me write this, first. So delta Q0 AR और डेल्टा Q0 BR, तो यहां पर हमने लिख लिया, let me keep this way only, Q0 BR, करेक्ट। अभी क्या लिखूं, ठीक है, एक काम करते हैं हम GR, सॉरी यहां पर लिखते हैं Q0 GR. So instead of changing the states, now I am saying like can I work with only one state? Now when we say that we are going to use only one state, so ultimately we need to see like whether it is accepting it or not, okay. तो अभी फिर से अगर A आता है तो क्या करना है, सॉरी
मैंने यहाँ पे ए लिखना था, फिर से ए आता है और ब्लू प्लेट है ऊपर, तो क्या करना है? करेक्ट। अगर सेम केस है कि यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पर जी है, तो क्या करना है? करेक्ट। अगर ऐसे सिचुएशन आता है, अभी देखो ये वर्क होगा क्या? देखो हर एक स्ट्रिंग के लिए ट्राई दिस वन। ओके, ये स्ट्रिंग लिख लो आप पहले, मैं लिख लेता हूं यहां पर। ए बी ए बी बी ए बी बी ए। इसको ट्राई करो, एक लिखना बाकी इसमें। हाँ, इसको ट्राई करो इसके साथ। देखो शायद हो जाए, लास्ट वाला शायद ही आएगा, क्यू जीरो एप्सिलॉन आर। सो इफ यू वांट एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक, राइट दिस। ओके, अभी इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी कोई भी एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई भी एक आप लो, वो होना ही चाहिए। सो क्यू जीरो ए आर, so we said q0 br, so I'm not writing state now, we know that only q0 is used। q0 bb, ये हो गया पॉप। q0 ar, फिर से q0 br। q0 bb, फिर से पॉप। q0 br, so ये आ गया g। q0 ag, ये पॉप। q0 br, फिर से g। q0 bg, ये g। q0 ag पॉप। q0 ag पॉप। q0 एप्सिलॉन आर एक्सेप्ट। देखो शायद ये आपका सॉल्यूशन हो जाए, करके देखो। यू टेक एनी स्ट्रिंग नाउ, गिव मी अल्लाह, गिव मी वन स्ट्रिंग, okay, where you have number of a's and number of b's to be same। Oh, okay. So AB and then AABB। ठीक है, अभी ये लेते हैं हम। ठीक है, ये यहाँ पर मैं थोड़ा स्टैक लेता हूँ जिससे हम लिख सके। ये आर, Q0 AR क्या आएगा? Q0 AR, ये यहाँ पर आ गया ब्लू। Q0 BR, Q0 BB, ये अभी हम इसको टैग करें। Q0 BB, ये हो गया पॉप। Q0 AR, फिर से ब्लू, ये हो गया। Q0 BB, BB, फिर से ये पॉप। Q0 AR, Q0 BR, Q0 AB, Q0 BB, Q0 BB, ये पॉप। Q0 BB, ये पॉप। हो गया, समझ में आ रहा है? ये दोनों पॉप होके फिर ये आर निकल जाएगा इससे। करेक्ट। So like you have to take this call, because if you keep adding states like this, because like the way that we had earlier logic, so we said we will be pushing, we'll popping, and then we will take a call on changing the states। अगर आप चेंज करते जाते हो तो आपको ऐड करने पड़ेंगे इसमें, so you'll be getting too many rules rather to be applied। देखो यहाँ पर कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और भी ये कंप्लीट नहीं हो रहा था। करेक्ट। So we already reached to 13 and we could not say that it is going to work, because we saw we have to add some situation like Q2AB और Q2AR, sorry Q2AR यहाँ पर ऐड करना पड़ने वाला था। वैसे Q4 के लिए B के लिए आता Q4BR, क्योंकि वो जहाँ पे एप्सिलॉन होता है उस केस में ही फिर से ऐड करना पड़ेगा। सो यू कैन डेफिनेटली गेट सोल्यूशन यूजिंग Q0 Q1 Q2, बट वो क्या होगा, हर स्ट्रिंग के साथ आपको कुछ एडिशन करना पड़ेगा, द वे दैट वी हैड दिस सिचुएशन। ये वाला जो सिचुएशन था ना
इसको हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप फिर से स्ट्रिंग अलग लेते हो तो देन यू हैव टू गो ऑन। सो दिस कॉल इज टू बी टेकन बाय यू। सो एग्जांपल्स लाइक दिस ट्राई टू सॉल्व देम विद 1, क्योंकि यहाँ पर कैसे है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी सिर्फ इक्वल चेक करने हैं, बट यू कैनॉट अप्लाई सेम लॉजिक विद वो ए रेस टू एन बी रेस टू एन। वहां पे भी नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी सेम थे, बट वहां पे स्ट्रिक्ट रूल था कि सारे एज उसके बाद बीज, करेक्ट। बट यहाँ पे कैसे स्ट्रिंग ए से भी स्टार्ट शुरू हो सकता है या बी से भी स्टार्ट हो सकता है। आर यू विद मी? ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ गया? यस Yes, sir. नैवेद्या, कुंज, यस सर। रुचा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, किसी के पास होगा तो। लैपटॉप है किसी के पास? या तो रहे, बाकी सारा आ जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ। Yes, I will take it. Okay, please, thank you. Yeah, so now let us try to तुझं झालं की सांग मला. Now let us try to write the PDA for that WWR वाला लेते हैं, correct? So if I try to concentrate on that Sir, part, झाला? Okay. So let me talk about now WWR thing. So this was one of the problem that I gave you to solve. Okay. So now you have string L is equal to WWR, where W belongs to A comma B star. WR is reverse of W. So now you have A, B, B. आप यहां पर लेंथ हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा, देख सकते हो आप यहां पर हमेशा इवन आएगा लेंथ। अगर ये W एक है तो WR भी उसका लेंथ एक ही आएगा, करेक्ट। सो लेंथ हमेशा इवन ही आएगा। So you cannot take ABA, correct? So AA, BB, BB, AB, BA, BA, AB, correct? So ABA, ABA, ऐसे हो सकता है। Now we don't know, like हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, whether it is going to be like where exactly your string is ending, correct? So let us talk about. Now initial thing would be same. String would be starting with A. So ये आ गया BR. If string starts with B, then it would be BR. अभी Q1 A B delta Q1 B G delta Q1 A G delta Q1 B B. करेक्ट, ऐसे सिचुएशंस आएंगे हमारे पास। ठीक है ना? Yes, sir. करेक्ट। अभी अगर आप केयरफुली देखो तो इसमें तो पॉप करना है, क्योंकि ए के बाद ए आता है, इसका मतलब ये पॉप हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉप नहीं होगा। ए और जी ऐसे सिचुएशन आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? बी डालना पड़ेगा, यहाँ पर जी डालना पड़ेगा। तो ये तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं हुआ इस केस में। सो लेट अस से वी आर एडिंग दिस, करेक्ट। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आएगा, ये वाला और ये वाला। इसमें कैसे है कि अगर ए आता है, ब्लू प्लेट है, तो या तो ब्लू पुश करो या तो उसको पॉप करो, क्योंकि अगर ये ऐसा सिचुएशन है तो आपने क्या कर दिया? Q1 BR कर दिया, लेकिन आपको इस ए के लिए पॉप भी करना है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस सेकंड ए के लिए आपको पुश भी करना है, करेक्ट? आर विद मी? व्हाट आई सेड? देखो,
Yes, sir. जब जब सेकंड ए आएगा, अभी ये केस अगर है सपोज, इस केस में अगर सेकंड ए आता है तो हमें जो ब्लू प्लेट डाला हुआ है उसको पॉप करना पड़ेगा, करेक्ट, इन दिस केस, सो एज टू एक्सेप्ट दिस बिकॉज इट इज रिवर्स, एम आई राइट? सेम केस इज हियर फॉर बीबी, हमने बी आर डाल दिया है तो, लेकिन बीजी आता है तो हमें पॉप करना पड़ेगा शायद, लेकिन ये सिचुएशन इन दोनों के लिए ट्रू है। व्हाट अबाउट दिस सिचुएशन, सपोज ये ए है, सो पहले ए के लिए पुश कर दिया, दूसरे ए के लिए भी पुश करना पड़ेगा, लेकिन तीसरे ए के लिए पॉप करना पड़ेगा, तो यू विल हैव दिस सिचुएशन ओनली, करेक्ट? सो फिर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूं क्योंकि बिकॉज आई मे नॉट बी एबल टू राइट दिस, सो Q1 AB, इसमें दो सिचुएशंस है, आइदर आई विल राइटिंग Q1 BB या आई विल राइट Q1 एप्सिलॉन, पॉप करना है इसलिए, correct? Now I'm keeping it Q1. Let us see what happens. So if I take Q1 BG, same case, Q1 GG या Q1 एप्सिलॉन, तो ये अभी कैसे हो गया कि ये जब ट्रांजिशन फंक्शन हम देख रहे हैं वहां पे दो एक्शंस हो सकते हैं, या तो पुश होगा या तो पॉप होगा, या तो पुश होगा या तो पॉप होगा, करेक्ट? यहाँ पे कैसे, यहाँ पे आपको पुश ही है हर केस में, चारों केसेस में, क्योंकि ये कैसे आएगा, ए जी है, इसका मतलब क्या है, अभी रिवर्स शुरू नहीं हुआ, रिवर्स कब शुरू होगा, सेम मैच होना चाहिए, जैसे कि यहां पर ए बी है तो उसके बाद बी आता है तो शायद रिवर्स हो गया, बट वी डोंट नो, करेक्ट? सपोज आपका स्ट्रिंग ऐसे है, यहां पर ए बी आया तो इस बी को आप पुश करोगे कि पॉप करोगे, करेक्ट? आर यू विद मी? यस प्लीज। Yes, sir. इसके बाद ये ए आता है तो ये तो पुश हो गया, सपोज ये भी पुश हो गया, लेकिन अगर ये आता है तो इसको पुश करना कि पॉप करना, तो यहाँ पे तो पुश करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आता है तो फिर से प्रॉब्लम वही आएगी, पुश करना या पॉप करना है, तो जहां पर भी एक के बाद एक जो एलिमेंट आने वाला है वो सेम रहेगा, देन वी वुड बी इन डायलेमा, व्हाट शुड आई डू, वेदर शुड आई पुश और वेदर शुड आई पॉप। और लास्ट में क्या लिखोगे आप, ये डेल्टा Q1 एप्सिलॉन R एंड Q1 एप्सिलॉन। अभी देखो एक कोई भी स्ट्रिंग दो, हम इसको ट्राई करते, चलो ठीक है। आपने डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम्स में शायद एक कंसेप्ट सुना होगा, बैक ट्रैकिंग, याद है, सुना है? यस सर। बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? अगर डिजायर नहीं मिले तो बैक ट्रैक कर, फिर से शुरू करो, करेक्ट? ओके, लेट अस डू दिस। सो Q0 AR क्या आएगा, Q1 BR, करेक्ट? Q1 BB, Q1 GB, Q1 BG, अभी Q1 BG मैं क्या करता हूं, इसको पॉप कर लेता हूं, ठीक है, देखते हैं हम होता है क्या। So I popped it, so I am entering into Q1, now I have Q1 AB, Q1 AB, फिर से मैं इसको पॉप कर लेता हूं, करेक्ट? now फिर से हमारे पास है Q1 AR, तो दिक्कत क्या हो रही है अभी यहां पर, अगर देखते हो तो आप तो दिक्कत ये हो रही है कि हमने जब स्टेट सेम रखा तो ये शायद ये एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि ये जीबी करते करते हो जाएगा, करेक्ट? सो शुड वी चेंज देन स्टेट? यस सर। सो कहां पर चेंज करेंगे? सर अगर Q0 से Q1 में ना जाए और वहाँ Q0 ही रखे तो मे भी हो जाएगा। मतलब क्यों एक ही स्टेट रखे, ऐसे बात कर रहे हो ना आप? हाँ सर। लेकिन फिर ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा ना उसमें? सर आई विल ट्राई फर्स्ट। या ठीक है।
क्योंकि ये एक्सेप्ट होना चाहिए, ये तो हम मानते हैं, ये क्योंकि ये रिवर्स है ना यहाँ पर, लेकिन देखो ये हो सकता है कि उसमें एक्सेप्ट, अगर आप सेम स्टेट रखते हो तो। चलो ट्राई करो, लेकिन ये कंसेप्ट आ गया ना आपके समझ में कि व्हाई आई एम आस्किंग इट, व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज नॉन डिटरमिनिस्टिक। यस सर। ओके, करो ट्राई करो अभी इसका थोड़ा सा। कैसे होगा देखो। So if we take Q0 only, so what would be effect? And if I take Q1, then like what happens? So if I take this string, say for example, okay, इसको अगर लेते हैं तो क्या होना चाहिए? इसको लेते हैं तो चलो एक ट्राई करते हैं हम। Q0 BR, Q1 GR, Q1 AG, Q1 BG, Q1 AB, सपोज हम पुश कर दे Q1 AB, Q1 BB, Q1 AG, तो ये पुश होता जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे तो भी हमें पॉप करना पड़ेगा, हमें पता कैसे चले कि यहाँ पर रिवर्स आ रहा है। तो ये तो रिवर्स देखो यहाँ पर पुश ही होता जाएगा सिर्फ हमेशा, करेक्ट। इट विल नॉट बी पॉपिंग एनीथिंग बिकॉज यू मे नॉट गेट एग्जैक्टली व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू। यहाँ पे शायद पॉप का कॉल हो, यहाँ पे शायद पॉप का कॉल हो, यहाँ पे शायद पॉप का कॉल हो, बट देन अगेन इट वुड बी रिवर्स थिंग ओनली इवन इफ यू ट्रैक इट दैट वे। ये देखो यहाँ पर एक पॉप हो गया सपोज, ठीक है, यहाँ पे अगर पॉप हो गया इसके लिए तो फिर से बीबी बचा, ऑलरेडी आपका जी जी गया हुआ है वहां पर, फिर से आप इसको बी बी को डाल के यहाँ पर बी को निकाल लोगे, करेक्ट। यहाँ पे बी को निकाल लोगे, ये ब्लू प्लेट को, यहाँ पे ग्रीन को निकाल लोगे, यहाँ पे शायद ग्रीन को निकाल लोगे इस केस में, क्योंकि यू वुड बी गेटिंग Q1 BG, करेक्ट। यहाँ पे ये बी के लिए ऑलरेडी डाल के रखा है इसलिए BG। तो दिक्कतें आ सकती है, correct. So that would be one issue. So like how should we write then? बट ये फिक्स है कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक ही रहेगा, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू टेक अ कॉल। सपोज आप हमेशा एक ही स्टेट में Q0 लिखते हो तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, जबकि ये एक्सेप्ट होना नहीं चाहिए। नहीं तो आप उस सिचुएशन में ये कर सकते हो, पॉप के लिए स्टेट चेंज कर लो, वो एक बात हो सकती है। इसके लिए अगर स्टेट चेंज कर लो, क्योंकि क्या है, हमें दो ट्रांजिशन आने चाहिए, आ गए, लेकिन अगर पॉप होता है तो फिर से Q2 में जाके फिर वो देखो क्या सिचुएशन है। तो जैसे
ऋतुजा बोल रही थी कि लाइक इफ आई कीप Q0 हियर, यहाँ पे सबको Q0 लिखो, यहाँ पर Q2 कर लो पॉप के टाइम में, और फिर वो फंक्शन ऐड कर दो. So that way will you be able to get that solution that way? कर रहे हो ना सॉल्व? मैंने आपको थॉट प्रोसेस दे दिया है. सो आई वांट यू टू सॉल्व दिस टुडे. Okay, try it so that like I will be adding that solution again probably in tomorrow's session. I will be showing you how exactly it will work because it will waste our time rather. Okay, but I gave you an idea like what exactly would be happening. So this would be leading to a non-deterministic PDA, NPDA. Correct? ठीक है. So इसको try करो because this will be one of the, this is only one problem probably like which we will be solving. So I will try to get one more problem where you would be saying that there would be non-determinism like the language given. Correct? जैसे कि ये language दे के रखा है. So you can take snap of it, but this is not the complete problem. Huh? This is incomplete one. So you can solve it. Okay, I have given you one idea like what exactly does this mean like when we do talk about non-determinism. Fine. ठीक है. एक छोटा सा टॉपिक है. I will take that and then we'll finish. So will you try this? आपको थोड़ा इनपुट दे दिया है मैंने. So you can try this definitely. Okay. Now आपको CFG पता है. CFG का रूल क्या है? A gives epsilon. Correct? Where epsilon belongs to Vn union sigma star. Correct. So suppose if I am given a context free grammar, can I come up with a PDA? So I am giving you an algorithm CFG to PDA. Okay. तो यहाँ पे दो रूल्स होते हैं. So what kind of symbols do you have here? आपको ग्रामर में दिए जाएंगे प्रोडक्शंस, ऐसे प्रोडक्शंस दिए होंगे. So आपको उनको वर्क करना है. एक उसमें पार्ट होता है कि एक प्रोडक्शन होते हैं और एक होता है टर्मिनल. तो आपको ऐसे लिखना है. सपोज कोई भी एक वेरिएबल है, ऐसे कोई भी एक वेरिएबल है जो प्रोडक्शन, उसके लिए प्रोडक्शन डिफाइंड है. तो यहां पर आपको लिखना है Q0 अल्फा, और अगर वो टर्मिनल है तो आपको लिखना है Q0 एप्सिलॉन. यही दो रूल्स है. These are the only two rules that you would be using, okay, for CFG to PDA. क्या करना है? आपको ग्रामर दिया रहेगा, उस ग्रामर को देखो कितने प्रोडक्शंस है. तो जितने आपके पास प्रोडक्शन होंगे, हर सिचुएशन के लिए आपको ये ऐड करना है. ये कब ऐड करोगे आप? ऐसे यहाँ पर. तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक आएगा. ये क्यों आएगा ऐसे? मैं ऐसे लिखूंगा प्रोवाइडेड. यहाँ पर मैं प्रोवाइडेड बोलता हूं A gives alpha in P. Correct? And this is for every A in sigma. So हर एक वेरिएबल के लिए and A belongs to Vn. हर एक वेरिएबल के लिए आपको लिखना है. सपोज आपके पास ग्रामर ऐसे है ASA, BSB, AAA, BAB, A gives AB. करेक्ट? अगर आपके पास ऐसे ग्रामर दिया है, फाइन, एंड यू आर आस्क्ड लाइक कंसीडर दिस ग्रामर with the production set like this, construct a PDA for it. So what will you be doing? So you are going to write PDA like this. So PDA would be, now how many variables are there? How many variables are there? Yes, please. 2 In S the and A. 2. Okay. So you write this Q0 epsilon S. अभी यहाँ पे लिखना है. हमें हर एक अल्फा लिखना. अल्फा कितने यहाँ पर? 4. So you write this Q0 ASA, comma Q0 BSB, comma Q0 AAA, comma Q0
BAB. फाइन. कितने टर्मिनल्स है? टू, A and B. पहले ए के लिए लिखना पड़ेगा, वेरिएबल ए बचा हुआ है. ए के लिए कितने प्रोडक्शंस है? एक ही है. अभी दो टर्मिनल्स है. Q0 AA, यहाँ पे लिखो Q0 एप्सिलॉन. करेक्ट? समझ में आ गया? सो सिर्फ आपको ये रूल यूज करने हैं दोनों. ये सबसे सिंपल केस अगर कुछ TCS में है, सबसे सिंपल वाला प्रॉब्लम अगर है तो ये है. आपको CFG दिया रहेगा, आपको लिखना है PDA, तो आपका ये PD हो गया. ये हो गया डेल्टा. आपका VN क्या आएगा यहाँ पर? सॉरी, VN नहीं, कैपिटल Q क्या आएगा? Q0. करेक्ट. कैपिटल F का आएगा. ये हमेशा आपको फाइल लेना है, यहाँ पर फाइनल स्टेट नहीं आएगा. करेक्ट. ये एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक ही रहेगा हमेशा. फाइन. ये जो भी PDA बनेगा आपका, इट विल बी ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक. फाइन. F5 हो गया, ये सारा डेल्टा हो गया. सिग्मा क्या आया आपका? A, B. स्टैक में क्या क्या जाने वाला है? स्टैक में सारे VN यूनियन सिग्मा रहेगा. ये जो स्टैक रहेगा ना, इसमें रहेगा VN यूनियन सिग्मा. देखो ये राइट साइड में जो भी है ना, ये स्टैक में जा रहा है ना. सो इट कुड बी BSB, ASB या ये भी हो सकता है. तो इसको हम बोलते हैं स्टार. उसमें ये आप VN यूनियन सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन ऐसे लिख सकते हो. ठीक है. 1 2 3 4, ये 5. Q0 आपका इनिशियल स्टेट हो गया. वो जेड, ये R जो बोल रहे थे ना हम, R, उसके लिए रहेगा S. ये आपका रहेगा स्टार्ट पॉइंट. स्टार्ट वेरिएबल जो ग्रामर का रहेगा, दैट वुड बी योर R. आर विद मी? कोई रूल Yes. रिपीट करें? या प्रांजल, can you tell me what exactly is the method to convert a CFG to PDA? Pranjal, are you there? Yes, sir. Yeah, can you repeat what are the rules to be used for converting a CFG to PDA? For every variable, you are going to apply rule 1. Okay, this is rule 1. So you can say this is rule 1, this is rule 2. For every variable, apply this rule 1 and you write the transitions. So you got this. For every terminal, write rule 2. So this is rule 2. Correct? So whatever the PDA that you are going to get, it would be accepted by empty stack. Your R would be yes, your tau would be VN union sigma union epsilon. Sigma would be AB, Q would be Q0 only in this case, your state. F would be empty. This is delta, initial state is Q0. Correct? ठीक है? समझ में आ गया? Allat, can you please take snapshot of this and add it? Yes, sir. Okay, so you can take any grammar, like what are the grammar that we took for say CFG, वो हमने किया ना CNF वगैरह. हर एक ग्रामर के लिए आप ऐसे बना सकते हो. कोई भी एक ग्रामर लो, उसका PDA बनाओ. ओके जैसे कि हमने बोला कि गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसको CNF में कन्वर्ट करो. जो ग्रामर लिखा था उसको अभी बोलो गिवन द ग्रामर कंस्ट्रक्ट अ PDF फॉर इट. सो राइट, यू हैव टू यूज दिस 2 रूल्स ओनली. ओके, फॉर कन्वर्जन. और आपका हमेशा ये डिटेल्स लिखना पड़ेगा. ये आपका पूरा रहेगा डेल्टा. करेक्ट? ठीक है. So in tomorrow's class, what we will be doing is we will be constructing a context-free grammar from PDA, as well as I am going to give you solution for that WWR if it is not possible for you to get the solution. You may get it on internet, you may get it in books, but I want you to give me like justification. What you can do is when you are done with the problem, you can record the video and add it on our WhatsApp group so that others also can understand that.
ऋतुजा के साथ कोई चॉकलेट शेयर करने वाला चाहिए हमें, तो whoever शेयर नहीं, मतलब आई विल बी गिविंग डेफिनेटली डिफरेंट वन, बट आई वांट समबडी लाइक हु इज गोइंग टू गिव मी फर्स्ट सॉल्यूशन. रिकॉर्ड करो उसको, वीडियो रिकॉर्ड करना है, ठीक है, आपको वो वीडियो वहां पर डालना है, ठीक है, करोगे? So that is your assignment. Like whoever gives me first, so that solution would be helpful for others too. If you cannot, then I definitely would be solving that problem in tomorrow's class. Fine? ठीक है? Yes, sir. Yes, Okay, sir. then see you tomorrow. So we will decide the timings. Okay, it would be mostly at 10. Okay, provided if you don't have anything at 10 o'clock. Rutuja, do you have any thing scheduled tomorrow? सर उद्या माझी वॅक्सिन डेट आहे, तुम्ही इव्हिनिंगला घ्या ना. Okay, we have a test of काय म्हणताय? Okay, ठीक आहे. Let us see. So I will reschedule the test. I have, okay. How about like 6 tomorrow 6? Because Okay. like when I said GNF is one of the toughest topic, one another topic is there which says PDA to CFG. This is again another difficult one. Correct. So that's why like it would be good like if you